The third is that is hash function. Yes. Hash function, or sometimes we also call it hash code. Okay, in today's lecture, we will discuss this message encryption method, and in the later lecture sessions, we will talk about the MAC and hash functions one by one. Okay, so the major differences, if I would like to tell you that what is the basic difference between all the things. Is it visible, na? Whatever I am writing? Yes, sir. Okay. So in message encryption method, the ciphertext will play a role of authenticator itself. Nothing special thing we will do, but the ciphertext will be generated with the help of message and key. So ultimately you can say that key itself will play a role of authenticator in message encryption method. Basically this is related to the symmetric encryption techniques. Now in MAC code, here a kind of code with the help of message M will be generated. Now it will be generated with key. So key is there, and once that completed code will be generated, then you call it MAC, and you will append this MAC to the message, and then send that message with the appended MAC code, and at the receiving end, the receiver will try to recover that MAC also for authentication purpose and do the comparison. And in hash code, generally, or we can say the most of the time, or even you can say this thing, that hash code will not require a key. Hash code is nothing but it is a kind of variable length code from, sorry, it is not variable, it is fixed. It is kind of fixed length code from variable message, from variable length message. So key is not required here for generating. Key is not required. For generating the hash code. Okay, so these are the three basic things, or three basic methods by which we can provide authentication in any kind of the encryption technique. Now I'm going back to the slides, because there are lots of diagram, so it is very difficult to draw those diagram on runtime. So I'm again sharing the slide. These are the topics that we have covered in the previous lecture sessions. If you have not gone through, so this one, feastal structure, so आप इसको जरूर देख लें, प्रॉब्लम आए तो पूछना, because it is very important structure for designing any kind of the block encryption cipher technique. The DES
and AES is based on this structure, and we have discussed even this. And in today's lab session, I will also discuss about the working principle with along with the code of this Feastel structure network. Okay, so after that we talked about the public cryptography basics, and then this is again RSA. This scheme is also the most important scheme whenever we talk about the public key cryptography systems. So I have discussed this also in the last lecture, yesterday's lecture, and if you have not gone through to this, then please go through to this and study, and if there will be any problem, then you may ask, because this is again an important technique. Even though in the next lab session, means next week, I will talk about this, what are the complexities and other things. Okay, now in today's lecture, as I told you, authentication and message authentication. So these are the requirements. I'm simply putting the glass board here. Okay, so as I told you that authentication requirement or authentication, why it is necessary. So these are the different things. First thing is disclosure. You may consider consider as the attacks to all the points: disclosure, traffic analysis, masquerade, content, sequence, and something like this. So source and destination repudiation. Okay, when we talk about the disclosure, so disclosure means disclose the message contains. इसको simple language में हम बोल सकते हैं disclose the message contained without permission I can use different color, without permission of authorized entity, without permission of authorized one. So if there will be any attack, somehow intruder will be successful, and if he or she may disclose the message contents to other ones, then it is also a very serious threat, and even we can consider a serious attack to this. Now traffic analyze, this one is the second thing. Traffic analyze we cannot consider directly an attack, but it is the complementary thing for launching any kind of the attack. Why I'm saying complementary? Because when we say that, is it visible ना? अभी ये वापस पीपीटी पर मैं आ गया हूँ, मैं लिख रहा हूँ वापस ग्लास बोर्ड पर. नहीं सर, बोर्ड विजिबल नहीं है. यार अच्छा वेट करो एक सेकंड. पीपीटी विजिबल है? यस सर. अच्छा तो बोलो ना यार, बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा. अभी ग्लास बोर्ड विजिबल है? देखो कुछ लिखा हुआ है. यस सर. डिस्क्लोजर के अगेंस्ट में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है. विजिबल है सर. हाँ ठीक है, थैंक यू. ओके ओके, सो डिस्क्लोजर आई हैव टॉक्ड अबाउट. नाउ द ट्रैफिक एनालिसिस, मैं फिर से बोल देता हूँ दैट इट इज नॉट द डायरेक्ट अटैक, but you can consider the complementary thing for launching any kind of the attack. Why I am saying it? क्योंकि ट्रैफिक एनालिसिस में आप क्या करते हो, you will try to detect, means intruder. I am talking about, just wait, ये स्टूडेंट्स कुछ आ रहे हैं. गुरकीरत, now you are in ना? Yes sir. हाँ Sir, network problem आ गई थी. हाँ ठीक है ठीक है. ओके ओके, सो ट्रैफिक एनालिसिस में हम whenever I'll talk about the attack, तो आप ये मानकर चलिए I am talking about the bad crypt analyst, or in simple language intruder. Okay, so whenever intruder do the traffic analysis, तो वो करता ये है, एक तो try to detect the pair of key,
if it is public key system, or only single key if it is symmetry key system. और क्या ट्राई करता है, then intruder will try to detect the plain text and cipher text pair. ठीक है. और in general case, in simple traffic analysis case, the intruder will try to detect directly to the generated cipher text only. देखो हमें फर्क नहीं पड़ता क्या एल्गोरिदम यूज किया गया, क्या की यूज किया गया, अगर मैंने किसी तरीके से रिकवर कर लिया कि व्हाट इज द साइफर टेक्स्ट, देन इट इज समटाइम्स इट इज आल्सो ओके विद मी. मैं एक छोटा सा एग्जांपल फिर से लेता हूं. सपोज आपने हेलो ट्रांसमिट किया था, ये आपका मैसेज था, आपने यूज किया सीजर साइफर और की यूज किया K+3, एक सिंपल सा. तो इसको आप चेंज कर सकते हो, देख लो किससे बदलेगा यार. ये ABCDEFGHIJK FGHMNO. Now if you, this is the cipher text, okay. Now if you are having this thing and somehow you know about the algorithm, और अगर आपको एल्गोरिदम नहीं भी पता तो आप इस तरीके के कई सारे प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट पेयर से रिकवर कर सकते हो, पता कर सकते हो. और कभी कभी हमें सिर्फ मैसेज से ही जरूरत होती है, मैं साइफर टेक्स्ट को पता कर लेता हूं और उसी को चेंज कर दूंगा, देन इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ द अटैक, जो कि यहाँ पर किया जाता है. फर्दर इसका जो एक्सटेंशन है, आफ्टर डूइंग ट्रैफिक एनालिसिस मैस्कुरेड मींस व्हाट वी विल डू, change the content of the message. मैं ये बहुत आसान सी लैंग्वेज में बता रहा हूं, अदरवाइज आप टेक्निकल लैंग्वेज देखोगे तो सभी पॉइंट्स के लिए बुक्स में काफी कुछ लिखा हुआ है, बट these are the basic thing. इनका मतलब यही है. ओके, so change the content of the message. अब इससे क्या होगा, why we are considering this as a attack, because आप कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं. सपोज इंट्रूडर ना वो की को पता कर पा रहा है, ना प्लेन टेक्स्ट को, ना प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर को, बट somehow he detect into the channel, यहां से उसने किसी तरीके से रिकवर कर लिया whatever the message साइफर टेक्स्ट. now what he or she will do, उसको डिटेक्ट करने के बाद में वो कुछ ऐड करेगा कंटेंट, एंड देन वापस उस चैनल में ट्रांसमिट कर देगा, एंड देन गो बैक टू द रिसीवर. नाउ दिस इज द इशू, बिकॉज रिसीवर विल गेट द डिफरेंट मैसेज, बट नो वन नोज कि वो मैसेज चेंज हो गया है, और रिसीवर उस मैसेज को ही एक्चुअल मैसेज समझ लेगा. सो दिस इज अगेन काइंड ऑफ द अटैक. Now there are three things: content, sequence and timing modification. So content modification you may consider in this masquerade. Sequence and timing modification से मतलब होता है, आपने suppose मैसेज किया my name is let's say Ram. तो इस मैसेज को जब आप ट्रांसमिट करते हैं, देन यू ऑलवेज रिक्वायर द सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस एट द रिसीविंग एंड इटसेल्फ. सब आपने पहले my ट्रांसमिट किया, दिस इज द फर्स्ट वन, देन यू विल ट्रांसमिट नेम, देन यू विल ट्रांसमिट is, and after that you will transmit Ram, the fourth group, fourth block. now अगर मैं इस सीक्वेंस को चेंज कर देता हूं, सपोज रिसीविंग साइड पर ये इस तरीके से आता है, लेट्स से 4 2 3 1. तो अब ये रिसीवर को मिलेगा कुछ इस तरीके से, राम नेम इज माय. ऑल्दो दिस इज वेरी कॉमन मैसेज, तो आप समहाउ रिसीवर डिटेक्ट कर लेगा, बट अगर कुछ लेंदी मैसेज है, डिफरेंट मैसेज है, बिट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग मैसेज जा रहा है,
then it will be very difficult. अगर मैं इसका ASCII वैल्यू चेंज कर देता हूँ, सपोज इस माई का ASCII वैल्यू बनता है 69, देन नेम का बनेगा सपोज 78, मैं कुछ भी रैंडमली नंबर ले रहा हूँ, इसका ASCII वैल्यू बनेगा लेट्स से 30, राम का सपोज बना 65. नाउ यू विल नॉट गेट द एक्चुअल मैसेज. आप ASCII वैल्यू के अकॉर्डिंग डिटेक्ट करने वाले हो, बट यहाँ पर कुछ और जनरेट होगा क्योंकि ये ASCII वैल्यूज डिफरेंट जाएंगी. सो दिस इज सीक्वेंस मॉडिफिकेशन. ये भी इंट्रूडर कर सकता है. देन द टाइमिंग मॉडिफिकेशन. ये टाइमिंग मॉडिफिकेशन का मतलब है कि अगर वो सीक्वेंस भी नहीं बदल रहा है, देन डिले विल बी देयर. सपोज मिलिट्री ऑपरेशंस ऑपरेशन इज ऑन और आपके पास मैसेज आता है कि that there will be chance that enemy will attack at evening, today evening at 5 PM. अब आपने उसको टाइम को ही डिले कर दिया, मॉडिफाई कर दिया और वो मैसेज आपको मिला 7 PM पर, then it will be very problematic condition क्योंकि तब तक अटैक हो चुका होगा और हमें मालूम नहीं. The thing is this. And उसी तरीके से source and destination repudiation, that it is basically related to this is the real authentication requirement, because no one can claim, no one can deny of happened communication, of happened communication. And no one से मेरा मतलब है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर साइड. तो ऐसा भी पॉसिबल है, अगर आपने कुछ इस तरीके की फैसिलिटी नहीं किया तो ये भी पॉसिबल है कि सोर्स मना कर दे कि नहीं मैंने ट्रांसमिट ही नहीं किया मैसेज, और रिसीवर मना कर सकता है जब मैसेज सेंड हो गया है उसके बाद कि ये जो मैसेज आया था, और वो रख भी लेगा उस मैसेज को, और देन ही और शी कैन से दैट कि वो मैसेज उसने नहीं लिया है. सो दीज आर दी बेसिक पॉइंट्स, or we can say the requirements. On behalf of these requirements, we must include the authentication process in any kind of the communication. So in general मैं इसको clear कर देता हूँ. Now these are the requirements. Now I'm moving to the 3 techniques that we have talked about in the starting of the lecture, that is the message encryption, MAC and hash code. So these are the 3 things. देखो जो कि हमने डिस्कस किया था, ये सारा कुछ वही है, इंटेग्रिटी एंड ऑल व्हाटएवर, ये जो लिखा हुआ है सिंपल थिंग है. आप यहाँ देख सकते हो, in symmetric encryption itself provides the authentication among sender and receiver because the same key is used for encryption and decryption purpose. So इसी को ही हम मैसेज इंक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं. तो अभी तक जितना भी हमने सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की एल्गोरिथम देखी थी, whatever the algorithms we have seen of the symmetric encryption technique, all are having the encryption inbuilt, because जो आपका साइफर टेक्स्ट है और या फिर आप कह सकते हैं जो की है, that key will play the role of authenticator itself in symmetric key system. But there is some issues, there is one major drawback of this, वो अभी हम देखेंगे. Other encryption scheme is related to the MAC and secure hash function, and ये common techniques हैं जो कि authentication provide कराती है mostly in a public key cryptography systems. And जो यहाँ लिखा है साइफर टेक्स्ट इन मैसेज एनक्रिप्शन, ठीक है, वो खुद से ही ऑथेंटिकेटर होता है. और यहाँ 2 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि हमने डिस्कस भी किए थे स्टार्टिंग में, कि मैक कॉम्बिनेशन होता है मैसेज और सीक्रेट की से, एक इनपुट जनरेट होगा जिसको आप मैक कोड बोलेंगे, और उसी तरीके से हैश कोड वेरिएबल मैसेज लेंथ को कन्वर्ट करके फिक्स लेंथ कोड में बदल देता है, बट की रिक्वायरमेंट नहीं होता इधर फॉर जनरेटिंग द हैश कोड. इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द मैसेज इंक्रिप्शन ओनली. Okay, so these are the 3 basic techniques for providing the authentication. अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ. Okay, now again
आई एम शेयरिंग। अच्छा, ये ग्लास बोर्ड अभी मैंने वापस से इस पर ओपन कर दिया है, ये विजिबल है या मेरे को Yes, sir. अच्छा विजिबल है ना, मैं कुछ लिख रहा Yes, हूँ। sir. ओके ठीक है ठीक है, अच्छा चलो ना, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो बोल देना, ठीक है। Okay, sir. ओके, सो दिस इज द बेसिक टेक्निक रिलेटेड टू मैसेज इंक्रिप्शन। अभी हम सिर्फ मैसेज इंक्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो, इसका कैप्शन है इस फिगर का, दैट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन। देखो तीन चीज, जब भी हम ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, सो थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज द ऑथेंटिकेशन इटसेल्फ, authentication. Second is confidentiality of the data. Confidentiality. And third is signature. इस प्रोसेस को भी हम देखेंगे किस तरीके से हम इस प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स में। और समटाइम्स ये डिजिटल सिग्नेचर भी बोलते हो आप इसको, तो आप सेपरेटली भी हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। बट दीज आर दी थ्री थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग दी बेटर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। तो अभी आप यहां पर देख सकते हो, उसके कैप्शन में लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, सो ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं करा रहा है। और आप इजीली यू कैन सी, एक सेकेंड, हमने शायद क्या मिस, ओके ये मिस कर दिया था। दिस वन इज द फर्स्ट डायग्राम इज दिस। ओके, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन बोथ। अब आप यहां देख सकते हो सेम की हम यूज कर रहे हैं। सेम की, तो इसका सीधा सा मीनिंग है that this is related to symmetric encryption. ठीक है, ये अभी लिखा, ये क्योंकि मैंने चेंज किया था, ये विजिबल है ना अभी जो लिख रहा हूं मैं वापस क्लास बोर्ड पर? Yes, sir. ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। ओके, सो सेम की वी आर यूजिंग हियर। तो ये सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का एल्गोरिदम टेक्निक जो भी बोल सकते हो आप, उसका केस है। या मैसेज एंड देन ये इंक्रिप्शन टेक्निक किया गया, मैसेज विद की। आपको यहाँ साइफर टेक्स्ट मिला, दिस इज साइफर टेक्स्ट। नाउ दिस इज आपने ट्रांसमिट किया एंड द डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, व्हाटएवर द डिक्रिप्शन एल्गोरिदम यू विल गेट। मैं यहाँ पर जो भी साइफर टेक्स्ट आया है, मैं इसको y से डिनोट कर देता हूँ। देन डिक्रिप्शन ऑफ y विद द सेम की, एंड देन यू विल गेट बैक योर मैसेज जो कि आपने ट्रांसमिट किया था। अब इसमें एक कंस्ट्रेंट है। द कंस्ट्रेंट इज की इज नॉट नोन टू, constraint is key is not known to any intruder. Now this is the constraint. If it is so, only then this process will work. Only then you can claim that confidentiality and authentication is there. तो देखो, अगर की नोन नहीं है तो अब ये कंफर्म है कि ये जो भी मैसेज साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है with the help of this key, so it is generated by source A only. क्यों? क्योंकि before starting the process ये जो की है K, ये दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन को ही प्रोवाइड की गई है और किसी और को नहीं दी गई है। so this is the thing. तो मैसेज जनरेट हुआ है तो सिर्फ A नहीं इसको साइफर टेक्स्ट जनरेट किया होगा, और कोई नहीं कर सकता। सो दिस इज रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये कॉन्फिडेंशियल मैसेज हो गया। नाउ रिसीविंग साइड पर सिर्फ बी, रिसीवर बी ही इसको डिकोड कर सकता है, क्योंकि बी के पास ही द सेम की है और किसी के पास नहीं है एक्सेप्ट ए। तो वंस वी विल अप्लाई दिस की and get back this message,
तो दिस इज रिलेटेड टू दी ऑथेंटिकेशन. अब ये ऑथेंटिकेशन भी हो गया कि ये मैसेज ए ने ही ट्रांसमिट किया था एंड ओनली बी विल गेट दिस मैसेज. दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी. बट कंस्ट्रेंट क्या था? स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया, की इज नॉट नोन टू एनी इंट्रूडर. समहाउ अगर ये की को पता कर लिया, then your complete system will get compromised completely. So this is the problem with message encryption in symmetric case, symmetric cipher case. Now I am moving to the next PPT. आप इसका pictorial view देख सकते हो. After this, now we will talk about the confidentiality with public key cryptography system. देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी लिखा हुआ है. इसका मतलब ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं करा रहा है. जो लोग भी नए हैं मैं बता देता हूं, इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक एंड प्राइवेट की ऑफ द करस्पॉन्डिंग यूजर विल यूज एज अ पेयर. सो दिस इज द करेक्ट केस. अगर आपने एक्स यूजर का पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए यूज किया है, तब आपको डिक्रिप्शन के लिए सेम यूजर का प्राइवेट की ही यूज करना पड़ेगा. और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है. मैं जो पॉसिबल केस नहीं है वो लिख देता हूं. सपोज आपने यूज तो कर लिया एनक्रिप्शन पर्पस के लिए पब्लिक की फॉर एक्स एंड यू आर यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ द यूजर वाई, देन फॉर डिक्रिप्शन, देन दिस इज रॉन्ग. ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा. तो हमेशा ये पेयर में सेम यूजर्स के पब्लिक एंड प्राइवेट कीज ही यूज किए जाते हैं. सो दिस थिंग मस्ट बी रिमाइंड टू ऑल ऑफ यू ऑलवेज whenever we talk about the public key system. So this is public key system. अब आप यहाँ इजीली देख सकते हो कि एनक्रिप्शन तो किया गया है पब्लिक की ऑफ बी. सो दिस इज व्हाट? पब्लिक की of B, user B. User B is destination, source A is the you can say the sender. तो and public की किसी की भी किसी के पास हो सकती है. I am telling this thing again. Public key of any user may have by any other user. ठीक है. But this is private key. This is private key of user B. Now private key means only the concerned user will have his or her private key, and the corresponding private key will not be shared with any other user. तो B के पास सिर्फ B का प्राइवेट की होगा, A के पास सिर्फ A का प्राइवेट की होगा, और उसी तरीके से अगर 10 यूजर्स हैं तो सेम लॉजिक पब्लिक और प्राइवेट कीज का यहाँ पर एप्लीकेबल है. तो यहाँ आप पब्लिक की ऑफ B यूज कर रहे हैं फॉर डूइंग इंक्रिप्शन. सो दिस इज पॉसिबल केस, क्योंकि A के पास पब्लिक की हो सकती है. A के पास इसकी खुद की पब्लिक की भी होगी और B की पब्लिक की भी होगी, और इसके पास प्राइवेट की खुद का होगा. बस B के पास पब्लिक की ऑफ B भी होगा, पब्लिक की ऑफ A भी होगा, बट इसके पास प्राइवेट की सिर्फ अपना खुद का होगा. सो दिस इज द केस. नाउ सो दिस इज पॉसिबल केस. आपने यहाँ एनक्रिप्शन कर लिया. सपोज दिस इज द साइफर टेक्स्ट दैट यू हैव जनरेटेड. इसको Y से डिनोट कर दीजिए. नाउ डूइंग द डिक्रिप्शन, जैसा आपको बोला था कि पब्लिक की ऑफ B अगर यूज किया है, देन you have to use this in pair always. आप प्राइवेट की ऑफ A यूज नहीं कर सकते हैं. You must have to use प्राइवेट की ऑफ B because पब्लिक की ऑफ B के लिए इंक्रिप्शन यूज किया था. तो ये भी पॉसिबल केस है क्योंकि B के पास उसका प्राइवेट की पॉसिबल है. नाउ मैसेज रिकवर्ड कर लिया. नाउ आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, एनीवन, कि सिर्फ इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों है? ऑथेंटिकेशन, व्हाई authentication is not there and why only confidentiality is there and how? क्योंकि जो पब्लिक की है वो सबके पास अवेलेबल है, तो मतलब
ठीक है, कोई किसी को भी मैसेज भेज सकता है उस तरीके में। ठीक है। तो इससे ऑथेंटिकेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि सपोज किसी लेट से यूजर सी ने ए का पब्लिक की यूज किया, सॉरी बी का पब्लिक की यूज किया और मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया, ये भी पॉसिबल केस है। लेकिन बी के लिए वो कंसीडरेबल है, बी ये सोच रहा है कि वो मैसेज ए से ही आ रहा है, तो ये ऑथेंटिकेशन नहीं है यहाँ पर। हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसे है कि आप पब्लिक की ऑफ बी से मैसेज डिक्रिप्ट तो कर रहे हैं, साइफर टेक्स्ट तो बन रहा है, बट ये साइफर टेक्स्ट मैसेज में तभी कन्वर्ट होगा जबकि आप प्राइवेट की यूज करोगे। किसका? बी का। और प्राइवेट की बी का सिर्फ बी के पास है, और कोई यूजर सी डी ई व्हाटएवर जो भी सिस्टम में मौजूद है, कोई और यूजर उस मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई दिस इज रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी ओनली, नॉट द ऑथेंटिकेशन। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना साथ में। ओके, now this is again the diagram. Now this is related to authentication and signature. Okay, अब हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, प्राइवेट और पब्लिक की का जो भी मेथड था वो हमने देख लिया है। मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूं कि ए के पास क्या हो सकता है, पब्लिक की ऑफ ए, पब्लिक की ऑफ बी एंड प्राइवेट की ऑफ ए। Now similarly, B will have public key of A, public key of B itself, and private key of B. Now message सबसे पहले encrypt किया गया यहाँ पर with the help of private key, और ये possible case है, हमने पहले ही लिख दिया है कि A के पास कौन सा keys हो सकते हैं, this one. Okay, so this is possible case. Now encryption is there, cipher text generate कर लिया आपने. Now this cipher text is related to this process encryption with the help of private key of A to the message. Suppose इसको Y मैंने बोला, अब ये कंफर्म है कि आपका ये जो मैसेज है इसको आप डिक्रिप्ट तभी कर सकते हैं जब आप पब्लिक की ऑफ A यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने पब्लिक की ऑफ A यूज कर लिया and you will get back your message. Now easily you can see here the authentication. Authentication कैसे है? Anyone? सर रिपीट करना एक बार क्या? ये अभी विजिबल है ये डायग्राम, ऑथेंटिकेशन एंड सिग्नेचर। यस सर। और ये मैंने अभी जो ग्लास बोर्ड पर लिखा है वो विजिबल है? यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, हाँ तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन एंड सिग्नेचर कैसे है यहाँ पर। ऑथेंटिकेशन कैसे है? अच्छा अच्छा चलो मैं खुद बताता हूँ, इट्स फाइन। आपने यहाँ देख सकते हो आप प्राइवेट की ऑफ ए यूज कर रहे हो फॉर डूइंग द इंक्रिप्शन ऑफ द मैसेज, ठीक है। एंड दिस इज ट्रू, कंप्लीटली ट्रू दैट सोर्स ए विल हैव ओनली हिज और हर प्राइवेट। हाँ बोलें सर, आगे समझ वो सर, अगर हम ए से बी मैसेज भेज रहे हैं विद इंक्रिप्शन ऑफ प्राइवेट की ऑफ ए, तो वो पब्लिक की ऑफ ए से ही डिक्रिप्ट होगा, जिससे पता लग जाएगा कि ए से ही वो मैसेज आ रहा है, ही आया है। ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन तो है, आपने जब प्राइवेट की यूज कर लिया, इसका मतलब ये जो मैसेज चैनल में जा रहा है वो 101% सोर्स ए, यूजर ए ने ही ट्रांसमिट किया है, क्योंकि वो प्राइवेट की से किया गया है, तो प्राइवेट की किसी और के पास हो नहीं सकता। ठीक है,
और बट द प्रॉब्लम ये है कि अब इस प्राइवेट की के डिक्रिप्शन के लिए आपको पब्लिक की ऑफ ए यूज करना पड़ेगा। तो वो जो सपोज यहाँ सी डी और भी यूजर्स हैं, उन सभी के पास भी पब्लिक की होगा। तो कोई भी यूजर चैनल में से इसको पिक करेगा साइफर टेक्स्ट को और जनरेट कर लेगा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बट ऑथेंटिकेशन है। एंड whenever authentication is there, then simultaneously signature is also there। आप जिस तरीके से इनिशियल बनाते हैं आपके सिग्नेचर का, तो ये प्राइवेट की will work as a initial of the signature। प्राइवेट की will work as a signatory thing for providing the signature process। तो सिग्नेचर एंड ऑथेंटिकेशन तो है। जो ये क्लेम कर रहा है कि ये मैसेज सोर्स ए से ही आया है, ना तो ए डिनाई कर सकता है और ना ही बी कर सकता है, बट कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है बिकॉज अदर मेंबर्स विल हैव द पब्लिक कीज ऑफ ए आल्सो, दैट्स व्हाई। ओके, अभी टाइम ओके 2-3 मिनट है। आई एम सिंपली मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब इसको देख लेते हैं, मेरे को फिर इसको बंद नहीं करना। ओके, सो दिस इज द डायग्राम and at the end the last diagram related to message encryption process। in message encryption हम authentication और confidentiality and signature ये तीनों एक साथ कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, आप इजीली इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ प्राइवेट की ऑफ ए यूज किया, तो जैसे ही इसको ए यूज करते हो आप, तो यहाँ पर सिग्नेचर एंड ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। एंड ये चैनल यहां तक आपका सोर्स साइड है, सेंडिंग साइड, ठीक है, और ये आपका रिसीविंग साइड है। अब आपने किया ये कि पब्लिक की ऑफ इसको वापस से इनक्रिप्टेड वर्जन को ही आपने वापस से इनक्रिप्ट कर दिया पब्लिक की ऑफ बी, जो कि पॉसिबल केस है क्योंकि ए के पास पब्लिक की हो सकता है। नाउ यू आर हैविंग डुअल इनक्रिप्शन प्रोसेस, डुअल इनक्रिप्शन प्रोसेस। तो अब एक चीज क्लियर है कि अगर आपको सभी सर्विसेज चाहिए फॉर द सेम सिस्टम, देन यू मस्ट यूज द डुअल इनक्रिप्शन मेथड। और कोई तरीका नहीं है। सिंगल इनक्रिप्शन से तो आप कोई एक ही चीज अचीव कर सकते हैं, but for doing all you require multiple stage encryption और dual से भी काम चल जाएगा, 2 स्टेज भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो पब्लिक की, अब जब इसको रिकवर करते हैं तो पहले आउटर मोस्ट रिकवर होगा। तो देखो पब्लिक की था बी का, तो प्राइवेट की बी से ही हो सकता है, तो ये रिसीवर ने रिसीव कर लिया। और कोई रिसीव नहीं कर सकता इस मैसेज को क्योंकि प्राइवेट की ऑफ बी सिर्फ बी के पास होगा। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो गया यहाँ पर। एंड वंस यू आर हैविंग दिस मैसेज, क्योंकि अब वो बी के पास आ चुका है, दिस मैसेज इज नॉट इन द चैनल, इट इज नॉट इन टू द चैनल। अब ये चैनल में नहीं है, बी के पास, बी ने रिसीव कर लिया है इसको, तब देयर विल बी नो चांस टू यूज पब्लिक की ऑफ ए विद द अदर यूजर। अब कोई चांस नहीं है क्योंकि बी के पास ये मैसेज आ चुका है, तो फिर बी पब्लिक की ऑफ ए यूज करने के बाद, जो कि पॉसिबल केस है, इसको रिकवर कर लेगा। नाउ दीज आर द प्रोसेस, इवन दो वी विल डिस्कस दिस अगेन, दिस डायग्राम अगेन हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी टाइम हो चुका है। ये सेम लाइसेंस कोई और दूसरा फैकल्टी यूज करेगा, तो मैं भी आई थिंक ये मेरे हिसाब से शायद समझ भी आ गया होगा। मैंने स्टॉप कर दिया है शेयरिंग, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, 1-2 मिनट है।